students, welcome back to my YouTube class, and in my previous video I have explained you how to find the solution of a system of linear equation by matrix method, and we have solved some questions also. And today I will explain you how to find the solution of a system of linear equation by matrix method of a 3 by 3 system of linear equation, means in which there are three variables. Then how to find the solution. Okay students, so let's start with this question. This is a 3 by 3 system of linear equation in which we have to find out the solution of this system of linear equation with the matrix method, right? So first we will write it in the form of Ax equal b, right? So matrix A is the matrix of the coefficient of this system of linear equation, and x, y, z are the variables, and this B matrix is what? The matrix of this. Clear? Now first thing, for finding out the solution of system of linear equation, we will find the determinant of this matrix, right? Determinant of this matrix is 2 3 3 1 minus 2 1 3 minus 1 minus 2, right? So the determinant is 2 multiplied by this and this, means with respect to 2 the determinant is what? This one. So minus 2 multiplied by minus 2 is what? 4. Then minus sign, and this multiplied by this. So this minus 1 multiplied by 1 is minus 1, and minus minus plus. So directly I am writing here because मैंने आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन कर दिए. तो नाउ आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है. नाउ minus sign and this element 3, and then this and this, leave this row and this column. So 1 multiplied by minus 2 is minus 2, and 3 multiplied by this is 3, to minus 3, right? Then plus 3, and with respect to this we will get this determinant. So 1 multiplied by minus 1 is minus 1, and 3 multiplied by minus 2 is minus 6, and minus minus plus, right? So here we will get the determinant is equal to 2 multiplied by 5 10 minus 5 multiplied by minus 3, minus 5 multiplied by minus 3 is what? Plus 15. Then from here also we will get 5 multiplied by 3, so this is again 15. So we are getting 40 as the determinant. Okay, so this is not equal to 0. So if this is not equal to 0, it means what? The system of linear equation will contain a unique solution, right? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. और अगर 0 आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है. ठीक है, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. मतलब हमें ए इनवर्स फाइंड करके और b से मल्टीप्लाई करना है. इसको मतलब हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल ए इनवर्स b, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? अब ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फाइंड करते हैं. कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए a11 फाइंड करेंगे. a11 की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर 1 + 1, और m1 का मतलब क्या हो गया? इसके रेस्पेक्ट में -2 1 -1 -2, ये वाला डिटरमिनेंट, राइट? सो -1 की पावर 1 + 1 इज पॉजिटिव 1, and from here we will get minus multiplied by -2 is 4, 4 minus 4, and plus 1 means 5 we will get from here, right? Same way a12 जब हम फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, एंड माइनर इज वॉट? 1 2 के रेस्पेक्ट में हमारे पास में माइनर क्या आ रहा है? 1 2 का मतलब क्या हो गया? ये एलिमेंट. और इसके रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो तो 1 3 और 1 -2, ये हमारे पास में बन रहा है, राइट? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आपके पास में आएगा, एंड 1 multiplied by -2 इज -2, एंड 3 multiplied by 1 इज 3. ठीक है, तो माइनस साइन बाहर आएगा और -2 और -3
इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, +5, राइट। तो इससे भी हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। जब आप A13 फाइंड करोगे तो आपके पास में -1 की पावर 1 + 3, और इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास में क्या बन रहा है, 1 - 2 3 -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में ये यहाँ से पॉजिटिव बनेगा, एंड फ्रॉम हियर 1 - 1 एंड 3 मीन्स देखो -1, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, +6। यहाँ से भी आपके पास में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट। A21 मीन्स -1 की पावर 2 + 1, और इसकी रेस्पेक्ट में माइनर क्या बन रहा है, 2 1, मतलब ये और ये 3 3 -1 3 3 -1 एंड -2, राइट। तो -1 की पावर 2 + 1 माइनस साइन हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -6 और यहाँ से +3, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से +3 आ जाएगा, राइट। A22 की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब -1 की पावर 2 + 2, और इसके रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे 2 2 मतलब दिस एलिमेंट, तो 2 3 3 -2 2 3 और 3 और -2, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -4, और ये आपके पास में -9, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, -13। A23 जब हम फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 + 3, मतलब माइनस, और 2 3 के रेस्पेक्ट में आपके पास में जो बन रहा है वो 2 3 3 -1 2 3 और 3 -1, राइट। यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा, और ये आपका -2 और -9, तो ये अगेन आपके पास में क्या हो जाएगा, -11, और बाहर नेगेटिव है तो ये +11 हो जाएगा। ऐसे ही हम A31 -1 की पावर 3 + 1, और इसके रेस्पेक्ट में जब हम इसका माइनर फाइंड करेंगे तो माइनर हमारे पास में क्या बन रहा है, इसका 3 1, मतलब इसके रेस्पेक्ट में 3 3 -2 1 3 3 -2 और 1, राइट। तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, ये 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन, और ये इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में -6 आ जाए, मतलब +6 हो जाएगा ये, तो इसको ऐड करने से 9 आ रहा है। A32 की वैल्यू -1 की पावर 3 + 2, और इसके रेस्पेक्ट में माइनर क्या बन रहा है आपके पास में, 2 1 3 1 2 1 3 1, राइट। यहाँ से माइनस साइन आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से 2 और -3, राइट। तो ये आपके पास में -1 और बाहर माइनस है तो 1 हो जाएगा ये, राइट। ऐसे ही हम यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे इसका, हमें अभी क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। A33 जब आप फाइंड करोगे तो A33 की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, A33 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 3 + 3, और इसके रेस्पेक्ट में माइनर क्या बन रहा है हमारे पास में, 2 3, ये इसके रेस्पेक्ट में माइनर हमारे पास में 2 3 1 और -2, राइट, ये बन रहा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 6 मीन्स पॉजिटिव, और यहाँ से आपके पास में -4 और -3, राइट, तो ये -7 आ जाएगा, क्लियर। अब हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब हम इसका मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। तो A11 की वैल्यू क्या है, 5, फिर 5 और फिर 5, राइट। इसके बाद में 3 -13 3 -13 और 11, और फिर आपके पास में बन रहे हैं यहाँ पे 9 1 और -7, राइट। अब हमारे पास में जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो हमारे पास में क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज करने पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 9 5 -13 1 5 11 और -7, राइट। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए,
हमें क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स हमारे पास में होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका जो एडजॉइंट ऑफ इनवर्स का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड एडजॉइंट ए, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में ये आ जाता है, राइट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास में कितना आया था, 40, राइट। तो 40 और ये मैट्रिक्स 5 3 9 5 -13 1 और 5 11 और -7, राइट। इस मैट्रिक्स को अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में बन रहा है, इस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। तो अब हमारे पास में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ए इनवर्स बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक मिनट, हम 40 को देखो, अगर आपके पास में ये डिटर्मिनेंट अगर डिवाइड हो रहा है, सभी टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तब तो आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो एक बार इसको बाहर रखिए ताकि आपका कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो इस मैट्रिक्स को हमें किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स से, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, मतलब हमें ए इनवर्स बी फाइंड करना है। तो हम इस मैट्रिक्स को 5 5 5 3 -13 11 9 1 और -7, इसको हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारा जो मैट्रिक्स बी है 5 -4 5 -4 और 3, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस एलिमेंट को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, राइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, राइट, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है। और ओके स्टूडेंट्स, सो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। ये जो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस रो इज मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, तो आपके पास देखो 5 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -4 इज -12, सो दिस इज -12 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27, राइट। सेकेंड एलिमेंट, ये आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 1 by 1 का एक मतलब 1 by 1 का नहीं, 1 by 3 का मैट्रिक्स आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपके पास में अगेन 25 -13 मल्टीप्लाई बाई -4, इसको ऐसे टर्न करके मल्टीप्लाई करना, राइट। तो -13 मल्टीप्लाई बाई -4 इज +52 एंड देन +3। सेम वे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 11 मल्टीप्लाई बाई दिस -44 और -7 मल्टीप्लाई बाई दिस इज -21, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो ये आपके पास में क्या क्या आएगा, यहाँ से ये आपके पास में 40 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में 80 आ जाएगा, देखिए 52 + 3 55 55 + 25 50, और इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में -40 आएगा, राइट। और आपके पास में यहाँ पे हमारे पास में क्या था, देखो 1/14 हम लिखना भूल गए, यहाँ पे 1/14 जो आपका डिटर्मिनेंट था वो भी आपके पास में रहेगा। तो जब आप इसको लिखोगे यहाँ पे तो 1/40 आएगा, और 1/40 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स जो आपके पास में बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 और -1, राइट। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास में, x y और z इसके इक्वल आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हमारे पास में -1 आ रही है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का विद द मैट्रिक्स मेथड। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको 2x2 लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया था। आज मैंने आपको एक 3x3 जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0
ये है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर हम अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा इक्वेशन, राइट। तो हम जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसमें कोई ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे अगर हम इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो देखो एक ही वैल्यू आएगी। अगर मैं जो C1 है उसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं, या फिर आप R1 को रिप्लेस कर दो, आप किसी को भी कर सकते हो। R1 को अगर हम रिप्लेस करें, आप C1 को भी कर सकते हो, R1 को भी कर सकते हो, राइट। तो R1 को अगर हम रिप्लेस करते हैं, राइट, तो अगर आप चाहो तो C1 को भी कर सकते हो, तो हम C1 को ही करते हैं। चलो, C1 को अगर हम रिप्लेस करें किससे, C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस ए। यहाँ पे भी 3x प्लस ए आएगा और यहाँ पे भी आपके पास में 3x प्लस ए आएगा। अब अगर आप R1 अप्लाई करते तब भी आपके पास में यही आता, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। बाकी एलिमेंट्स हम ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो जो है कंप्लीट अगर सेम आ रहा होता है, एक ही एलिमेंट है, तो हम उस एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ एलिमेंट को, और यहाँ पे हम 1 1 1 और x प्लस ए, और यहाँ पे x और x प्लस ए, ये आप लिख सकते हो इक्वल टू 0, राइट। अब आप चाहो तो इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हो, और डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड होगा वो। अगर हम चाहें तो इसमें कोई ना कोई ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें R1 लगा देते हैं, R2 जो है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, R2 माइनस R1 से, ठीक है। R2 को अगर हम रिप्लेस कर दें R2 माइनस R1 से, अगर हम रिप्लेस कर दें, और R3 को भी सेम हम R3 माइनस R1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये 3x प्लस ए तो हमारे पास में बाहर रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1x ये एज इट इज़ आएगा, और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0, इसमें से R2 माइनस R1 करना है, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा a, और दिस माइनस दिस आपके पास में क्या बचेगा, 0। सेम वे आप जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0, इसको R3 माइनस R1, ये 0 हो गया, ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ये आपके पास में a बचेगा, राइट। अभी देखो हमारे पास में मैक्सिमम टर्म्स जो है वो 0 आ चुकी है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में, C1 के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास में इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम 3x प्लस ए, और C1 के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट 1 माइनस, ये हमारे पास में क्या होता है, मैंने आपको बताया था -1 की पावर 1 + 1, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये प्लस माइनस प्लस, और इस तरह से भी ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। तो ये एलिमेंट यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 होता है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये 1 2 1 है, तो -1 की पावर 2 + 1, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आया, इसके रेस्पेक्ट में आपके पास में इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो आपके पास में ये बचेगा, तो यहाँ पे a² - 0 आएगा, राइट। इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, -0, और इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ दो तो ये मल्टीप्लाई ये, तो अल्टीमेटली आपके पास में ये जो एलिमेंट आएगा वो 0 ही आएगा, और इसका जो नेक्स्ट बनेगा वो भी आपके पास में 0 ही बनेगा, राइट। ये दोनों एलिमेंट 0 है तो अंदर कुछ भी आए वो 0 ही होगा, राइट। तो हम 0 लिख सकते हैं। तो आपके पास में क्या बनेगा यहाँ से, 3x प्लस ए और a² = 0। तो अगर a² जो है उसको अगर हम 0, ए आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a जो है वो तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब 3x प्लस a = 0 होगा। अगर ये इक्वल 0 है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। ये हमें गिवन है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस वैल्यू विल बी 0, और अगर ये वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आपके पास में -a/3 आ जाएगी, और हमें यही वैल्यू फाइंड कर देती है। क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था वो भी एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है रिकॉल करवा दिया है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा हाउ टू फाइंड द सिस्टम ऑफ solution of a system of linear equation when it is a 2 variable equation and when it is a 3 variable equation. So I hope कि आपको समझ